morning everyone. So let's start this new topic. This is called as thermal stress. So before starting this topic, thermal stress, first of all we should understand what actually the thermal loading is. Okay, so thermal loading किसको बोलते हैं अपन? What is thermal loading? So जब भी अपन किसी मटेरियल पे, whatever the material we have, whatever the metal we have, किसी भी मेटल पे जब भी अपन टेम्परेचर रेज करते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं, सो उस मटेरियल का डायमेंशन चेंज होता है. दैट इज कॉल्ड एज थर्मल लोडिंग. लेट्स सपोज यू हैव वन स्टील बार. ओके, नाउ देयर इज अ लेंथ L is the length of steel bar. A is the cross section area of the steel bar. Let's say initially the steel bar is at the temperature of T1, let's say 25 degrees centigrade. Okay, so whenever you will increase this length, increase the temperature of T1 from 25 to T2, let's say 100 degrees centigrade. So if you increase the temperature like this, so definitely the length of this metal, of the steel rod, will increase if there is no restriction at the end. So if it is free to expand, definitely its length is going to increase. Okay, now how much this length is going to increase? That is called as change in length of steel because of thermal loading. So this thing we are going to find out. इसका एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है. Okay, so ये change in length कितना होने वाला है, ये डिपेंड करता है. There are two different or three different factors जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. First factor, this change in length is increase in length or decrease in length is directly proportional to length of your object. First thing, so the increase in length because of thermal loading is directly proportional to your length of object. मतलब क्या हुआ, आपके ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर काफी ज्यादा रहेगा तो आपके टेम्परेचर चेंज के कारण उसका लेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगा. सेकेंड, दिस चेंज इन लेंथ डेल्टा एल थर्मल लोडिंग के कारण जो चेंज इन लेंथ है, दिस चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन the amount of temperature you are changing, that is delta T, and this delta T value will be equals to T2 minus T1, the final temperature minus initial temperature. So whatever the amount of temperature you are using increasing, so on this amount of temperature also this delta L depends. Okay, so if we combine both the terms, so delta L thermal will depend on length of object as well as temperature delta T. Okay, so here you have a constant of proportionality. So if you want to remove this constant proportionality sign, you need to introduce a new term that is called as constant of proportionality. So I'll add the new term like is equals to alpha L into delta T. So alpha is called as the constant of proportionality or coefficient of thermal expansion. इस अल्फा को क्या बोलते हैं अपन? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन. एंड इस अल्फा का वैल्यू रहेगा हमेशा पर डिग्रीज में रहेगा आपके पास अल्फा का वैल्यू यूनिट यू कैन से. एंड ये अल्फा ही आपके गवर्निंग पैरामीटर है कि जिस मटेरियल के लिए अल्फा का वैल्यू ज्यादा रहेगा उस मटेरियल का चेंज इन लेंथ भी ज्यादा रहेगा. जिस मटेरियल के लिए अल्फा का वैल्यू कम रहेगा उस मटेरियल के लिए चेंज इन लेंथ का वैल्यू भी क्या रहेगा? कम रहेगा. ठीक, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ thermal loading, alpha L into delta T. Alpha is called as coefficient of thermal expansion. Let me write down also. Alpha is called as coefficient of thermal expansion. L is a change in length of object and delta T is total change in temperature. Okay, so in this way we can find out the total change in length of any object. ओके, नाउ ये तो अपना चेंज इन लेंथ निकल गया. इसके बेस पे डेफिनेटली आप स्ट्रेन भी निकाल सकते होंगे. इसके बेस पे डेफिनेटली क्या निकाल सकते हैं अपन? स्ट्रेस भी निकाल सकते होंगे. चलिए, सो अगर इसके बेस पे अगर आप स्ट्रेन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टेम्परेचर स्ट्रेन, जिसको अपन बोलेंगे क्या? टेम्परेचर स्ट्रेन. अभी स्ट्रेन अपने को क्या पता है? व्हाट इज स्ट्रेन? दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन T से. सो दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ and this change in length is because of thermal length. Okay, so इसके change in length का वैल्यू कितना होता है? अल्फा L into delta T upon L. L and get cancel,
So alpha into delta T is the value of temperature strain. Okay, now I want to find out the value of temperature stress. अभी टेम्परेचर स्ट्रेस का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, so वो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन. सो वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे बिकॉज इसके बेस पे अब आगे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले. ओके, नाउ अभी तक आपने देखा क्या, जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मटेरियल का लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ चेंज हो रहा है. बट इस चेंज इन लेंथ, जब ऑब्जेक्ट का लेंथ चेंज हो रहा है, सो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो टोटल स्ट्रेस जनरेटेड था दैट इज इक्वल्स टू जीरो. क्यों जीरो हो रहा था स्ट्रेस? बिकॉज देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन एट द अदर एंड, इट इज फ्री टू एक्सपांड. सो जब भी आपका मटेरियल या ऑब्जेक्ट फ्री टू एक्सपांड रहेगा, वहां पे कभी भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू. गेट में हमेशा ऐसा एक ना एक क्वेश्चन आपको टेम्परेचर स्ट्रेस से पूछता है, और कई बार इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है. दे विल गिव यू सम न्यूमेरिकल, दे विल कीप वन एंड फ्री एंड दे विल आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस generated inside the body. Simply say what, no, do not do anything, directly put the answer as zero. Because whenever there is a no restriction at the other end, the stress will be always zero. So अगर आपको other end पे stress generate करना है, तो उस केस पे क्या होगा, दूसरे एंड पे अगर आपको स्ट्रेस जनरेट करना है, तो उस केस पे हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका दूसरा एंड क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड. ओके, सो अगर मुझे इस प्रॉब्लम में भी स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आई डू, जो ऑब्जेक्ट आपके पास पहला था सेम ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन, एंड आई रिस्ट्रिक्ट वन एंड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आल्सो. ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन, अभी क्या हो, हेलो, यस, ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स फॉर दैट. ओके, सो जैसे आपको स्ट्रेस का वैल्यू जनरेट करना है, आपको दूसरा एंड क्या करना है, फिक्स करना है. नाउ व्हाट यू डू, यू विल इंक्रीज योर टेम्परेचर. सो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज L ओनली. सो व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर डेल्टा T, जब इंक्रीज करेंगे इस केस पे, सो डेफिनेटली क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट का लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन इट कैन नॉट चेंज इट्स लेंथ. सो अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेट्स अज्यूम दिस रिस्ट्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, देन व्हाट विल हैपन, ये ऑब्जेक्ट आपको क्या होता, यहां तक मूव ऑन करता, इस ऑब्जेक्ट का चेंज इन लेंथ कितना होता, इतना चेंज इन लेंथ हुआ रहता ऑब्जेक्ट का, अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता. सो दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, रिमेंबर. बट because of reaction, because of this resistance, what is happening, ये जो resistance provide कर रहा है, this is providing resistance R here, this restriction is providing resistance R here, and because of this resistance आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ना हो कि क्या हो रहा है, सिर्फ इस पॉइंट तक के या फिर अपनी जगह तक की वापस स्टे कर रहा है. सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन. This contraction is change in length of this contraction is because of this reaction R. So let me write down, this is change in length because of reaction R. Is it clear? So again I am repeating the things, no? ये ऑब्जेक्ट था आपके पास, उसके दूसरे एंड पे क्या लगाया आपने, एक और रिस्ट्रिक्शन लगाया. उस रिस्ट्रिक्शन के कारण जब आपने ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो इससे पहले क्या हुआ था, इट कैन डायरेक्टली इंक्रीज इट्स लेंथ. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट्स लेंथ कैन नॉट बी इंक्रीज, बट फॉर द टाइम बीइंग अपन अज्यूम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है. तो अगर वहां पे कोई सपोर्ट नहीं होता तो क्या होता, इसका लेंथ यहां तक के इंक्रीज होता, एंड दिस इंक्रीज इन लेंथ इज बिकॉज ऑफ डेल्टा L थर्मल. बट है तो सपोर्ट वहां पे, तो अगर वहां पे सपोर्ट आपने अप्लाई किया है, तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ था, ये पूरा लेंथ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. एंड ये जो रिस्ट्रिक्टेड लेंथ है, किसके कारण है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स R. सो इफ बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स R, तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ इज डेल्टा L R एंड टोटल इंक्रीज इन लेंथ इज डेल्टा L T. सो व्हाट आई डू, आई डायरेक्टली इक्वेट दिस टू वैल्यू because these two values are same. So change in length
because of thermal loading should be same as change in length because of R. This R. Okay, so total change in length because of this thermal loading क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? This is nothing but L alpha into delta T. So let me write down alpha in this manner. So L alpha into delta T. And ये change in length because of restriction R, because of this point load. अपने को पता है क्या होता है, PL upon A. So we know this delta L is nothing but equals to PL upon A. बस यहाँ पे P की जगह क्या लग रहा है? We are assuming the reaction and reaction upon A. Let me write down here, no problem. R L upon A E, and this R upon A is nothing but your stress. Okay, so I am writing in terms of stress into length upon Young's model. So you know this thing. You can see from the previous lecture. So this length, this is what sigma L upon E is R. So L और L क्या हो गया दोनों साइड पे कैंसिल हो गया. फाइनली स्ट्रेस का वैल्यू क्या है आपके पास? सो हियर आई हैव द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी इनटू यंग्स मॉडुलस. So this stress is nothing but called as stress temperature. So because of thermal loading, this is the amount of stress that will generate inside the body. Remember one thing, stress will only generate whenever there is a restriction at the other end. अगर restriction नहीं है वहां पे तो stress कभी भी generate नहीं होगा. Okay, so three things we have find out. First is change in length because of thermal loading. Alpha L सभी लोग फॉर्मूला लिख के रखेंगे ना. So alpha L into delta T. Second one is change in strain, or strain you can say. Strain is what? Change in length upon actual length. So alpha L into delta T upon L. So alpha into delta T will be your strain. And here the stress alpha delta T E. So जिस मेथड से आपने स्ट्रेस फाइंड आउट किया है, रिमेंबर दैट मेथड. इसी मेथड के बेस पे आपने सारे प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. In all the problems we'll equate these two things. Change in length of because of thermal loading should be equal to change in length of right side reaction. हर एक प्रॉब्लम में आपको यही करना है. Okay, so I think so this part is clear to everyone. So now we will start with these three topics: members in series, members in parallel, and two force member connected to multi-force members. So we will see the example one by one कि किसको members in series बोलते हैं, parallel बोलते हैं, two force member connected to multi-force members बोलते हैं. आपने ऑलरेडी किया हुआ है इसके ऊपर प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 1 में, बट इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में. तो इसके इस जो पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने, उसमें क्या देखा था आपने? हर एक प्रॉब्लम में सिंगल एक्शियल लोडिंग अप्लाई कर रहे थे ना. अभी एक्शियल लोडिंग की जगह आपको लोडिंग कैसा अप्लाई करना है? थर्मल लोडिंग अप्लाई करना है. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज मेंबर्स इन सीरीज. सो लेट्स सी दिस वन, मेंबर्स इन सीरीज. इसके कारण आपने कैसा स्ट्रेस जनरेट होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, मेंबर्स इन सीरीज मतलब क्या होगा? देयर आर two or more members connected in series. So let's say this is the one member number 1. Let's say this member number 1 is made up of the steel, and this here I have a second member. Let's say this is member number 2. This member number 2 is made up of the copper rod. So one is of steel and second one is, let's say, copper. Okay, so this type of arrangement is called as members in series. ओके, नाउ अभी इसको मेंबर्स इन सीरीज बोल रहे हैं, मतलब क्या करना है आपको? इसके लिए टोटल चेंज इन टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ सकता है आपको इस प्रॉब्लम में. सो इसके लिए अगर टोटल आपको स्ट्रेस निकालना है, सो ये स्ट्रेस आप कैसे निकालेंगे? लेट्स से यहाँ पे अगर आप इसका टेम्परेचर रेज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अगेन सेम, इट विल चेंज इट्स लेंथ, इट विल इंक्रीज इन इट्स लेंथ, एंड अगेन देयर विल वन रिस्ट्रिक्शन विल एक्ट हियर, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन द स्ट्रेस विल जनरेट. सो जैसा आपने पहले निकाला था, सिमिलर फैशन में आपको यहाँ पे भी निकालना होगा. ओके, सो लेट्स सी दिस थिंग. जैसे आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, सेम डायग्राम यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो इसका लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा. एंड लेट्स सपोज फॉर टाइम बीइंग आपके पास ये जो सपोर्ट आपने अप्लाई किया, दिस सपोर्ट इज नॉट प्रेजेंट. अगर वो सपोर्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? ये आपका स्टील मेंबर था, तो स्टील का लेंथ कुछ इंक्रीज होगा, एंड साथ में क्या होगा? आपका कॉपर का लेंथ भी कुछ इंक्रीज होगा. एंड दिस इज नथिंग बट द टोटल चेंज इन लेंथ. And this total change in length is because of delta L thermal.
Okay, so this total change in length is because of delta L thermal, but actually what is happening, actually there is support. Okay, तो अगर एक्चुअली वहां पे सपोर्ट है तो ये जो टोटल इंक्रीज इन लेंथ था क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एंड उस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन कितना लग रहा है आपके पास, R, and this R reaction is common for steel as well as copper. So अगर वहां पे रिएक्शन R लगा है आपके पास तो क्या होगा, आपका चेंज इन लेंथ वापस आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. So there would not be any change in length. Okay, so ये जो इस पोजीशन में था वापस इस पोजीशन में आ गया, there is no change in length here. Okay, so यहां से लेके यहां तक जो वापस से ये इंक्रीज इन लेंथ था, अभी वापस से यहां से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, this contraction is because of change in length because of this right support. क्लियर है, ठीक है. सो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन चेंज इन लेंथ R के कारण हो रहा है, तो अगर आप फाइनली इक्वेशन जब इसका बिल्डअप करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सॉरी जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगा, वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसा बनेगा, सो डेल्टा L बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग शुड बी सेम एज डेल्टा L बिकॉज ऑफ R. जैसा आपने पिछले प्रॉब्लम में किया था, पिछले कंसेप्ट में किया था, सेम स्टेप आपको फॉलो करना है. ओके, सो बिकॉज ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ thermal loading, this change in length of thermal loading, so this will be two type of loading, one of steel and another of is of copper, because length of steel, length of copper may change, may be different. Alpha of the steel and alpha of copper will be different. Okay, so change in length of thermal of steel plus change in length of thermal of copper, that we have to do. Second one, रिस्ट्रिक्शन के कारण, अभी रिस्ट्रिक्शन के कारण भी क्या होगा, स्टील पे भी अलग चेंज इन लेंथ होगा एंड कॉपर पे भी अलग चेंज इन लेंथ होगा, बिकॉज इट ऑफ इट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. So here I am writing the same change in length of steel because of right loading plus change in length of copper because of. Let's put down all the values also. So इसका change in length का वैल्यू कितना होगा, so this will become alpha of steel multiplied by length of steel मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज. सो टेम्परेचर चेंज इज कॉमन फॉर बोथ ना, सो उसके लिए सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है आपको. प्लस इसके लिए क्या होगा, अल्फा ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. राइट साइड पे, इस साइड पे क्या होगा अभी आपके पास, सो दिस इज स्ट्रेस ऑफ स्टील रिएक्शन अपॉन एरिया स्ट्रेस ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय length of steel upon Young's modulus of steel plus stress of copper, length of copper upon Young's modulus of copper. Okay, so this is the equation 1 from which you can solve your problem. So this is the equation जहां पे सारा वैल्यू दिया रहेगा आपको, and you will get one relationship between stress of steel and stress of copper. ओके, सो अभी स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्ट्रेस ऑफ कॉपर के बेस पे आपने पहला इक्वेशन निकाला, किससे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, जैसा आपने पहले भी देखा है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. ओके, सेकंड इक्वेशन किससे निकलेगा आपको, सेकंड रिलेशनशिप किससे निकलेगा आपको, दैट रिलेशनशिप विल बी बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी देख लिया आपने कैसे फॉर्म करना है. अगर इसमें इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, मतलब इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमेशा अपने कैसे फाइंड होता है, सम ऑफ फोर्सेस इन एवरी डायरेक्शन. तो लोड शेयरिंग के बेस पे आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड करते हैं. सो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स R लग रहा है आपके पास, ये रिएक्शन फोर्स R क्या करेगा, आपको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स स्टील को देगा एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स क्या देगा आपको, कॉपर को देगा. करेक्ट, तो ये अगर R सेम अमाउंट ऑफ फोर्स स्टील को दे रहा है एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कॉपर को दे रहा है, तो लोड ऑफ स्टील विल बी सेम एज लोड ऑफ कॉपर. सो लोड ऑफ स्टील विल बी सेम एज लोड ऑफ कॉपर. So load of steel and load of copper will be same definitely, but stress will not same because stress depends on what, its cross section area. So यहाँ पे जो आपने इक्वेशन निकाला है, this equation is based on your stress, so इसको भी आप स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लो. So stress of steel is nothing but stress of steel multiplied by its cross section area
and stress of copper is nothing but stress of copper multiplied by its cross section area. So this is nothing but equation number. So this is a equilibrium equation you have, and this is the compatibility equation you have. So based on these two equations you can solve any problem. Clear है सभी को? Okay, so हर एक प्रॉब्लम में अपन ये दो इक्वेशन यूज करने वाले हैं and then we are going to solve the problem. Okay, चलिए. So इसके बाद एक और प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट एक और बच जाता है. Let's suppose gap is given. Okay, so in this till now सबको क्लियर है यहाँ तक के? Yes. So now if there is a gap given to you, अगर गैप गिवन रहेगा तो क्या होगा, ये कॉपर रॉड यहाँ तक ना क्या होगा, सिर्फ इस पॉइंट तक रहेगा आपके पास, ये यहाँ तक रहेगा आपके पास सिर्फ, एंड देयर इज अ गैप गिवन टू यू, दिस इज द गैप गिवन टू यू. इसी गैप को किसी किसी प्रॉब्लम में आपको यील्डिंग भी बोलेगा. सो आइदर गैप और यील्डिंग, आइदर गैप और यील्डिंग, दोनों में से कोई भी एक डेटा दिया जा सकता है. सो इसको क्या बोल सकते हैं, अब गैप या यील्डिंग दिया रहेगा तब क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि स्टील एंड कॉपर में जब तक के ये इस सरफेस को टच नहीं करता, जो भी यहां पे गैप दिया रहेगा, दिस गैप, जितना भी अमाउंट ऑफ गैप दिया रहेगा उस गैप के अमाउंट तक क्या होगा, पहले फ्रीली एक्सपांड होगा, एंड जैसे वो स्टील को टच करेगा देन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस. सो जब तक कि आपका गैप का डिस्टेंस फिलअप नहीं होता, आपको कुछ भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा. ओके, सो अगर इसी प्रॉब्लम में देखेंगे, सो अर्लियर दिस वाज द पोजीशन ऑफ योर बार, एंड ये यहां से लेके यहां तक के चेंज इन लेंथ हुआ थर्मल स्ट्रेस के कारण, दिस इंटायर अमाउंट. लेट्स से गैप का कुछ वैल्यू ले लेते हैं. लेट्स से गैप इज इक्वल्स टू ए, जैसा आपके आई थिंक सो बुक में लिया है, ए इज द गैप, जस्ट आर्बिट्ररी वैल्यू लिया. तो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल चेंज इन लेंथ था, दिस चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल थर्मल, टोटल चेंज इन लेंथ. एंड इसके बाद जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन आया, दिस रिस्ट्रिक्शन विल बी अप टू दिस लिमिट ओनली, रिमेंबर. सो ये जो लिमिट था सिर्फ यहां तक की रिस्ट्रिक्शन आएगा, एंड दिस गैप इज नॉट कवर्ड इन दिस रिस्ट्रिक्शन, दिस गैप ए इज नॉट कवर्ड. ओके, सो अगर नाउ इसके बेस पे अगर आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो आपका था कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, सो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसा होगा, सिंपल सा अलजेब्रा है, कुछ भी नहीं करना है. यहां देखिए, दिस इज द अमाउंट टोटल डेल्टा एल, सो लेट मी राइट डाउन डेल्टा एल ऑफ थर्मल, दैट इज टोटल चेंज इन लेंथ बिकॉज़ ऑफ थर्मल लोडिंग, दैट शुड बी इक्वल्स टू, अभी देखिए ये गैप है प्लस डेल्टा ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सो ए गैप प्लस डेल्टा एल ऑफ डेल्टा एल ऑफ रिस्ट्रिक्शन आर. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, एंड इसके वैल्यूज आप जैसे ऊपर रखे हैं वैसे अपन वैल्यू पुट अप कर सकते हैं. सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, एडिशनल पार्ट ए यहाँ पे राइट साइड पे ऐड हो गया, या फिर आप इसको लेफ्ट साइड लाके डेल्टा एल से इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर को अपन ए के इक्वली मान सकते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जैसे ऐसा प्रॉब्लम दिया उसके बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं हमेशा ऐसा प्रेफर करता हूं कि जो जैसा प्रॉब्लम दिया उसके बेस पे अपन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ड्रॉ करके निकालें और उसके बेस पे अपन आगे सॉल्व करें. सो ये अगर कंसेप्चुअली आप समझेंगे तो आपको कभी इक्वेशन मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. काफी सारे बुक्स में आपको कैसा दिया रहेगा, डायरेक्टली दे विल गिव यू दिस वन, डेल्टा एल थर्मल माइनस डेल्टा एल आर, दैट शुड बी इक्वल्स टू ए. ये सेम इक्वेशन यहीं से डिराइव किया अपन ने, और जीरो. सो अगर आपके पास गैप दिया रहेगा तो यहाँ पे गैप का वैल्यू पुट अप करना है, और गैप नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट जीरो पुट करना है. सो दैट इज द इक्वेशन डायरेक्टली, एंड इक्वेशन एंड जो सेकंड इक्वेशन गैप के साथ रहेगा जो फोर्स बैलेंस का है, दैट विल बी सेम, कुछ भी इसमें चेंज नहीं रहेगा. PS विल बी इक्वल्स टू P ऑफ कॉपर, बिकॉज स्ट्रेस कब जनरेट होने वाला है, हमेशा गैप खत्म होने के बाद ही स्ट्रेस जनरेट होने वाला है. मतलब जब इस मेंबर को टच करेगा, ये सरफेस को टच करेगा, उसके बाद ही स्ट्रेस जनरेट होगा. सो देयर इज नो चेंज इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा. ओके, आई थिंक सो दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ व्हाट विल डू, विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस.